Hello everyone, welcome to Infinity Vision. We are back with NCERT solutions, and this time we'll be discussing inverse trigonometric functions class 12. तो उसकी exercise 2.2, the second exercise we'll discuss. So let's see what type of questions we have. So first question is a very simple one. 3 sin inverse x is equal to 3 sin inverse 3x minus 4x cube. So we have to prove this. So what we'll do here is we'll put x is equal to sin theta. Now what we'll get after putting this, ये sin inverse sin theta, ये क्या हो जाएगा थीटा. तो अगर इसे मैं लिखूं, so left hand side is sin inverse sin theta and right hand side is sin inverse 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Right? So now sin inverse sin theta, when theta lies between minus half to half, so this sin inverse sin theta will be equal to theta. So this becomes 3 theta, and this is the formula for sin 3 theta. 3 sin theta minus 4 sin cube theta. This is the formula for sin 3 theta. So this side we get sin inverse sin 3 theta. And if we see, LHS and RHS are both equal, so therefore this is proved. So this is a very simple question. In these type of questions, we have to substitute x as some trigonometric ratio and we'll simply prove or get the answer of whatever we want. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें वही स्टोरी कॉज के साथ है. तो ये है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x. तो इसमें हमें x को क्या पुट करना पड़ेगा, cos थीटा. सो x को अगर cos थीटा पुट करें, सो वी गेट 3 cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. और अगर इसे सॉल्व करें तो cos inverse cos theta becomes theta. So we get 3 theta. And this is cos inverse of, this is the formula for cos 3 theta. So this side becomes cos inverse cos 3 theta. Now cos inverse cos 3 theta, this becomes 3 theta. So we get 3 theta is equal to 3 theta. Hence this is proved. So these type of simple questions are asked in NCERT. और अब अगर तीसरा क्वेश्चन देखें तो ये थोड़ा देखने में मुश्किल सा लग रहा है. यहां पे tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है. तो हमें याद करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस टाइप की हमारी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. और यहां पे tan इनवर्स भी दे रखा है. सो वी गेट द आइडिया दैट वी हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is equal to secant square theta. So यहां पे अगर x को tan theta पुट कर दिया जाए, so this can be solved. So x को अगर tan theta पुट करें, so we get tan inverse root 1 plus tan square theta. और यहां माइनस में 1 अपॉन फिर से x है, तो x की जगह क्या आएगा, tan theta. Now what is 1 plus tan square theta? We know that this is equal to secant square theta. तो ये बन जाएगा root secant square theta, which becomes secant theta. So this is equal to tan inverse secant theta minus 1 upon tan theta. अब यहां पे इनको sin और cos में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करते हैं. So sin और cos में कन्वर्ट करने से this becomes tan inverse 1 upon cos theta minus 1 upon sin theta upon cos theta. और अब अगर यहां पे LCM लेके cos theta को कैंसिल किया जाए, so we'll get tan inverse tan of, sorry, not tan of, tan inverse 1 minus cos theta upon sin theta. राइट अब हमें हाफ एंगल के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए. सो 1 माइनस कॉस थीटा, दिस कैन बी रिटन एज
2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सो ये हाफ एंगल के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हाउ डू वी गेट दिस फॉर्मूला? ये कॉस थीटा को डबल एंगल के फॉर्मूले में बना के देखें तो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस 2 टाइम्स थीटा बाय 2, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहां से ये फॉर्मूला बनता है। और साइन थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। और अब अगर यहां से साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कैंसिल किया जाए तो वी गेट tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। सो दिस इज इक्वल टू थीटा बाय 2। एंड व्हाट इज थीटा? इफ x इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहां पे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x पुट करके वी गेट हाफ tan इनवर्स x। तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा लेवल अप हुआ है। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसमें tan इनवर्स के अंदर 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स, इसका अंडर रूट है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वही डबल एंगल फॉर्मूले और वही हाफ एंगल फॉर्मूले जो हमने देखे थे। तो 1 माइनस कॉज एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। एंड 1 प्लस कॉज एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये 2 और 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाय 2, और उसका रूट हो जाएगा तो दिस विल बिकम tan x by 2. So this is tan inverse tan x by 2. Now tan inverse tan x by 2 will be equal to x by 2. So this was a very simple question. इसमें भी वही डबल एंगल फॉर्मूले को यूज करके इनको हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें tan इनवर्स है और उसके बाद cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ये गिवन है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है? तो हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि बाहर हमें tan इनवर्स दिख रहा है तो अंदर भी tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अंदर tan में कन्वर्ट कैसे होगा? अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दिया जाए, cos x से डिवाइड कर दिया जाए, तो अगर ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर दिया जाए, सो दिस बिकम्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, राइट। क्योंकि cos x से डिवाइड करेंगे तो cos x अपॉन cos x 1, sin x अपॉन cos x tan x। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है? इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1 को लिखा जा सकता है tan पाई बाय 4 माइनस tan x, और यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x। क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है तो यहां पे 1 को मैं tan पाई बाय 4 से इजीली रिप्लेस कर सकता हूं। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर tan a माइनस b, विच इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सो दिस बिकम्स tan a माइनस b। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x। नाउ tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस x। So this will be the answer. अब जब भी आपको इस तरह से tan x की इक्वेशन दिखे तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, इसको हमेशा इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। इस 1 को लिखना है tan पाई बाय 4, ताकि जो tan a माइनस बी में tan a माइनस tan b है उसमें ये 1 एक tan की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाए। तो tan पाई बाय 4 माइनस tan x, और यहां पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan a tan b बनाने के लिए इस 1 को मैंने लिख दिया tan पाई बाय 4। सो दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट। अब अगर x को मैं a टाइम्स सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करूं तो कैसे? x को अगर a साइन थीटा पुट किया जाए
सो व्हाट विल गेट हियर इज, न्यूमिनेटर में बनेगा tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अगर a स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन लिया जाए, सो दिस इज tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन रूट a स्क्वायर कॉमन, so we get a square times 1 minus sin square theta. And what is 1 minus sin square theta? This is equal to cos square theta. So this becomes tan inverse a sin theta upon a cos theta. कैसे? क्योंकि ये बनेगा a square cos square theta, उसका अंडर रूट होगा तो बन जाएगा a cos theta. So ये कैंसिल हो गए, we get tan inverse tan theta which is again equal to theta. अब यहां से थीटा कैसे निकाला जाए, x की वैल्यू तो हमें पता है, तो अगर साइन थीटा की वैल्यू यहां से देखी जाए, सो दैट इज इक्वल टू x अपॉन ए. तो अगर थीटा की वैल्यू देखी जाए, सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ थीटा एंड द आंसर इज साइन इनवर्स x अपॉन ए. सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं. जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो x को a टाइम्स सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर. अब ये वाला फॉर्मूला हमें याद दिलाता है tan 3 थीटा के फॉर्मूले की. तो अगर x को tan थीटा हम पुट करें, सो दिस विल इजीली बिकम द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा. देखते हैं कैसे. अगर x को हमने पुट किया a tan थीटा, सो वी गेट tan इनवर्स यहां पे 3a स्क्वायर टाइम्स x की वैल्यू है a tan थीटा माइनस x क्यूब मतलब a क्यूब tan क्यूब थीटा. सो दिस इज a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में दिस इज a क्यूब, ये ऐसे रहेगा, माइनस 3a टाइम्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. तो अगर यहां से देखा जाए a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब, तो a क्यूब हर जगह से कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. अब ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का. तो अगर यहां पे इसको tan 3 थीटा से रिप्लेस कर दें, सो वी गेट tan इनवर्स tan 3 थीटा. सो tan इनवर्स tan 3 थीटा विल बी 3 थीटा, और थीटा को रिप्लेस कर दो tan इनवर्स x अपॉन ए से. सिंस x इज इक्वल टू a tan थीटा, थीटा विल बिकम tan इनवर्स x अपॉन a. सो दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन. बस तुम्हें यह देखना है कि x को कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखा जाए. सो दिस इज द होल टारगेट ऑफ दिस एक्सरसाइज. आपको बस इस चीज की प्रैक्टिस करनी है. अब ये क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. यहां पे tan इनवर्स भी है, cos भी है, sin इनवर्स भी है, बट एक स्टेप बाय स्टेप इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं. सो विल स्टार्ट विद हियर साइन इनवर्स हाफ. नो साइन इनवर्स हाफ कितना होगा, इसको अगर देखने में आपको दिक्कत हो रही है तो साइन इनवर्स हाफ को हम थीटा पुट कर लेंगे. नाउ दिस इक्वेशन कैन फर्दर बी रिटन लाइक दिस, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, एंड व्हेन इज साइन थीटा हाफ, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, राइट. 30 डिग्रीज पे साइन थीटा की वैल्यू हाफ होती है. सो दिस बिकम्स पाई बाय 6. तो ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी tan इनवर्स 2 cos of 2 times, so this sin inverse half is what, pi by 6, right. अब ये 2 3 से cancel, so we get tan inverse 2 cos pi by 3. So cos pi by 3 मतलब cos 60 degrees, which is again half. So this becomes tan inverse 2 times half. Now 2 times half is equal to 1. So we get
tan inverse 1. And when it's tan inverse 1, so tan inverse 1 will be equal to pi by 4. So tan theta is 1 at pi by 4, therefore tan inverse 1 is equal to pi by 4. अगर इसको करने में भी दिक्कत हो रही है तो we can let this as alpha, और वहां से tan alpha is equal to 1, तो alpha is equal to pi by 4. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. सो इसे देखने में सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि ये कौन से फॉर्मूले बन रहे होंगे, राइट? सो अगर x को हम tan थीटा पुट करें, राइट? सो इफ वी पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, या यहां पे x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो लेट्स से दे आर अल्फा एंड बीटा. सो x को tan अल्फा पुट कर लेते हैं, y को tan बीटा पुट कर लेते हैं. तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन रही है? सो दिस इज tan ऑफ हाफ, और हाफ के अंदर क्या है? साइन इनवर्स 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, राइट? Now 2 tan alpha upon 1 plus tan square alpha. This is the formula for sin 2 alpha. तो आपको sin 2 alpha, cos 2 alpha, tan 2 alpha, इन तीनों के फॉर्मूला tan alpha की टर्म्स में भी आपको याद होने चाहिए. And this is the formula for sin 2 alpha, and this is the formula for cos 2 beta. तो साइन डबल एंगल का फॉर्मूला अगर tan अल्फा की टर्म्स में देखना है तो ये होता है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है. सो अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए, सो दिस इज tan ऑफ हाफ, और यहां पे साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा प्लस cos इनवर्स cos 2 बीटा, राइट? So sin inverse sin 2 alpha, this is equal to 2 alpha, this is equal to 2 beta. So we get tan of half 2 alpha plus 2 beta. So half of 2 alpha plus 2 beta is equal to tan alpha plus beta. Now we know the formula for tan a plus b. So tan alpha plus beta का formula put करते हैं. Tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta. What is the value of tan alpha? This is equal to x. Tan beta is y. So this becomes x plus y upon 1 minus xy. So this will be the answer. तो इसमें आप देख सकते हो कि sin 2 alpha का भी फॉर्मूला यूज हुआ है, cos 2 बीटा का भी फॉर्मूला यूज हुआ है, और tan alpha plus बीटा का भी फॉर्मूला यूज हुआ है. तो इसमें मल्टीपल फॉर्मूलाज यूज हो रहे थे, ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज. तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है. सो नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस थोड़े सिंपल लेवल के हैं. सो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3. अब आपको ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की याद होनी चाहिए कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की किसी भी एंगल की निकालनी है तो उसको कैसे प्रोसीड किया जाए. तो हम इसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाय 3. सो पाई माइनस पाई बाय 3, साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा. क्योंकि अगर साइन थीटा को देखा जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, राइट? एंड साइन पाई माइनस थीटा, दिस विल बिकम साइन थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी. सो दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3. अब क्योंकि ये पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में है, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 विल बिकम पाई बाय 3, राइट? तो अगर वो एंगल तो अगर ये एंगल उसकी रेंज के अंदर आ रहा है साइन इनवर्स की, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली एंगल के इक्वल आ जाएगी. तो साइन इनवर्स साइन थीटा will be equal to theta when theta lies between minus pi by 2 to pi by 2. अब नेक्स्ट देखते हैं tan inverse tan 3 pi by 4. अब 3 pi by 4 angle, this lies in the second quadrant.
सो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की पिक्चर क्या होती है हम देखते हैं. सो इसको सबसे पहले मैं पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूं, राइट. नाउ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट tan theta is negative. So this can be written as tan minus pi by 4. So tan inverse tan of minus pi by 4. Now this minus pi by 4 lies between minus pi by 2 to pi by 2, which is the range of tan inverse x. So therefore this becomes minus pi by 4. Right? तो इस एंगल को हमें इसकी रेंज के बीच में लाना है, राइट. तो tan इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होती है. अगर यहीं पे cot इनवर्स होता, जिसका भी एक क्वेश्चन आएगा, तो उस केस में 0 टू पाई के बीच में लाना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट इज tan ऑफ sin इनवर्स 3 by 5 प्लस cos इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 3 by 2. सो इस क्वेश्चन में अगर सामने tan है तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो sin इनवर्स 3 by 5, इसको अगर मैं थीटा एज्यूम करूं, सो वी गेट sin थीटा इज इक्वल टू 3 by 5, राइट. तो अगर sin थीटा 3 by 5 है तो tan थीटा की वैल्यू सिंपली फाइंड की जा सकती है. तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 3 by 4, राइट. सो थीटा को अगर tan इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं tan इनवर्स 3 by 4. और इसको अगर tan इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो बहुत सिंपल है, इसका रिवर्स कर दो, राइट. सो tan यहां पे रहेगा tan इनवर्स 3 by 4 प्लस दिस इज tan इनवर्स 2 by 3. एंड वाई? तो इसका रीजन लिखने के लिए हम यहां लिख देंगे cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 upon x. सो ये प्रॉपर्टी लेके हम इसको प्रूव कर सकते हैं. सो देयरफॉर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला हम पुट कर देंगे. सो दिस इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई. सो दिस बिकम्स हाफ, डिनोमिनेटर में हाफ आ रहा है और न्यूमिनेटर में आ रहा है 9 प्लस 8 17 अपॉन 12. सो दिस इज tan ऑफ tan इनवर्स. अब tan ऑफ tan इनवर्स को तो हटा ही सकते हैं, सो सिंपली बस आंसर लिख देते हैं. सो दिस इज 17 अपॉन 12 अपॉन हाफ. So this is equal to 17 upon 6. So this is the answer. Right? So simple question है. बस ट्रिक यहां पे ये है कि ये साइन इनवर्स है, ये कॉट इनवर्स है, तो इन दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा. अब नेक्स्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है. cos इनवर्स cos 7 pi by 6. तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं cos इनवर्स cos pi प्लस pi by 6. नाउ दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो दिस इज cos इनवर्स माइनस pi by 6, राइट. अब क्योंकि cos इनवर्स cos माइनस pi by 6. अब क्योंकि हमें पता है कि cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 टू पाई होती है, तो इससे 0 टू पाई लाना जरूरी है. तो इसको मैं cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 पे लिख सकता हूं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव होता है, राइट. सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 6. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6, राइट. So answer is this one, B. So let's see the next one. Sine of pi by 3 minus sine inverse minus half. तो पहले इसी को देख लेते हैं कि sine inverse minus half क्या होगा. तो इसे मैं लिख सकता हूं sine inverse sine minus pi by 6, ऐसे लिखा जा सकता है, right? So sine inverse sine minus pi by 6 will be equal to minus pi by 6. तो ये
माइनस पाई बाय 6 बन जाएगा. So this becomes sine of pi by 3 minus pi by 6. So this is sine 60 plus 30. This is equal to 90 sine pi by 2. So sine pi by 2 is what? 1. Sine 90 degrees is 1. So D is the correct option here. Let's see the next one. So इसमें है tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3. तो tan inverse root 3 तो हमें पता है कितना होता है. So this is equal to pi by 3. अब cot inverse minus root 3. तो cot inverse minus x, this is equal to pi minus cot inverse x. तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लेंगे तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. cos इनवर्स के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है. तो cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स. क्योंकि cot इनवर्स की रेंज 0 टू पाई होती है, तो देयरफॉर दिस एंगल लाइज बिटवीन 0 टू पाई. और ये नेगेटिव एंगल तो आ नहीं सकता, राइट? सो cot इनवर्स माइनस रूट 3, इसे मैं लिख सकता हूं cot इनवर्स पाई माइनस cot इनवर्स रूट 3, राइट? अब cot थीटा रूट 3 कब होता है? पाई बाय 6 पे. सो पाई माइनस पाई बाय 6, दिस इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6, राइट? अब क्वेश्चन क्या बन गया है? दिस इज पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 6. सो देयरफॉर on solving this we get minus 2 pi by 6 or minus pi by 3, right? Sorry, minus so on solving we get 2 pi by 6 minus 5 pi by 6, which is equal to minus 3 pi by 6 or minus pi by 2. So this B part is the correct answer. So this was the NCERT 2.2 exercise of inverse trigonometric functions. Stay tuned for more videos. Thank you.